स्टेट गवर्नमेंट से अपील है और होर्डर भी समझो उसको, वार्निंग है कि अब जल्द से जल्द यहाँ में मेरा तागिन जनजाति का 5,000 पीपल का यहाँ में इफेक्ट हो रहा है। अपना ज़मीन हम लोग अपना ज़मीन देना नहीं चाहते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट क्यों जबरदस्त। आज के इसी प्रेस ब्रीफिंग के साथ आत्सू के साथ ज्वाइन होके एंड देन जितना भी यहाँ इफेक्टेड फॉरम है, जो इनोसेंट विलेजर्स है, जो तकलीफ झेल रहा है, उनके साथ हमेशा करार है। आप लोग ज़बरदस्त भी मत कीजिए, देम लाएगा वो करेगा बोलकर। आप जो हम सब नहीं मान रहे तो आप लोग क्यों ज़बरदस्त कर रहे हैं? हम या एरिया का लोग जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो हम यहाँ हमारा तागिन ट्राइब जो एक्सेप्ट नहीं। पब्लिक को रुला के, पब्लिक को दुख पहुंचा के आपका ऐसे वाला डेवलपमेंट को क्या करें? Good evening, people of Dap Region and people of Upper Sumatra District and the people of Arunachal Pradesh. Today, on 9th October of 2025, we have submitted a joint representation to Deputy Commissioner Upper Sumatra District, Arunachal Pradesh, regarding the permanent withdrawal of Subansiri Upper Hydroelectrical Project at Menga. And we have consists of various organizations of Upper Sumatra District, like all Upper Sumatra District Student Union, DSU, along with Apadlaju, that all Talia Paing, Lable, Jaring Student Union, and Sinaltasu, that is Sium Nacho Lemiking Taxing Area Student Union. His president, Mr. Kyosar Baki, and Apadlaju General Secretary Busser Maing, and DSU representative, and various executive member of DSU and ATSU, and all Tagin Student Union and District Student Union and various area-based student unions have submitted same memorandum to Deputy Commissioner of Upper Sumatra District after receive a letter and representation from various villages of this affected project. There is more than 4,000 publics has submitted their representation to ATSU and DSU and various student organization and for withdraw this project. And we have number 5 point representation to Deputy Commissioner. That is, number 1 point is immediate withdrawal and cancellation of preliminary notification number LMD 13011/5/12024/14/10 dated 11 September 2025. This is the first point. And second point is the permanent cessation of all land acquisition, survey and all site development activities pertaining to the Subansiri Upper Hydro Power Project 1605 megawatt at Menga. Number 3 point is recognition and respect for the constitutional and customary and environmental rights of the Tagin community over their ancestral lands and forests. Number point four is we firmly demand the permanent withdrawal and cancellation of the Subansiri Upper Hydro Project at Menga. Any attempt to forcefully acquire land or continue project-related activities against the will of the affected people will be viewed as direct violation of their traditional right and will invite democratic resistance from the public and the student community of Upper Sumatra District. Number 5 point is, furthermore, we categorically state that if our collective voice and genuine demands of the land affected people continue to be neglected or ignored, we will have no alternative but to mobilize the peaceful and democratic movement to resist the construction of the Subansiri Upper Hydro Project 605 megawatt. We will remain committed to constitutional, lawful and non-violent means of protest to safeguard the rights, livelihoods, culture and environment of our communities. ये हमारा 5 पॉइंट है जो आज हम लोग का जितना भी वेरियस ऑर्गेनाइजेशन से आया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन की तरफ से, तागिन स्टूडेंट यूनियन की तरफ से, जो आज हम लोग सबमिट किया हुआ है। अपर सुबनसिरी में या में अपर सुबनसिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आपका बोल के मेंगा में जो डैम बनने जा रहा है, उसमें लैंड अफेक्टेड पीपल फोरम बोल के एक है ऑर्गेनाइजेशन जहाँ से ये डैम का इफेक्ट होता है। उन लोगों ने ऑल तागिन स्टूडेंट यूनियन, डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन और एरिया बेस्ड स्टूडेंट यूनियन को
एक रिप्रेजेंटेशन जो सबमिट किया, किस लिए सबमिट किया बोलने से अपना लोग का ज़मीन जो यहाँ में डूबने जा रहा है, इस कारण से सबमिट किया। तो वो लोग का सबमिट करने का भी हम लोग दमादम से ऑल टागिन स्टूडेंट यूनियन अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट, ये एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है टागिन कम्युनिटी में डिस्ट्रिक्ट में और एरिया बेस्ड स्टूडेंट यूनियन। ये दमादम कभी मीडिया पर नहीं उतरता है, दमादम इशू पर नहीं होता। उतरने का कारण जो है आप लोग जैसे कि ये देख सकता है, ये जितना भी लैंड अफेक्टेड पीपल है जो ऑर्गेनाइजेशन को अंडरटेकिंग करके दिया हुआ है, यहाँ में ऑलमोस्ट आपका 4000 जैसे ये जितना भी लैंड अफेक्टेड है सब मार्च एरिया का जितना भी लोग है, यहाँ में हम लोग अंडरटेकिंग का साथ दिया हुआ है। हम लोग अपना ज़मीन देना नहीं चाहता है, फिर भी गवर्नमेंट जो फोर्सफुली अपना ज़मीन को हड़पने के लिए कोशिश कर रहे हैं बोल के ये है। तो इस कारण से आज का डेट में जॉइंट रिप्रेजेंटेशन देने का कारण जो हुई है आप लोग को क्लियरली बता दूँ। और दूसरा बात देखिए, अभी अपर सुबनसिरी में जितना भी जो व्यूवर्स देख रहा है, क्लियर बता दूँ डैम का क्या इफेक्ट है क्या नहीं है, उसको मैं बता दूँ। क्योंकि हम लोग डिटेल स्टडी नहीं करने से कभी मीडिया पर आता भी नहीं है, क्योंकि कम्युनिटी का सवाल है, ये कम्युनिटी ये डिस्ट्रिक्ट का सवाल है। तो डैम जो इस प्रकार है, देखो डैम यहाँ में MOU के हिसाब से 2023 को ये साइन हुआ स्टेट गवर्नमेंट और NHPC, उसका हिसाब से 2000 मेगावोल्ट है। लेकिन NHPC वाला का प्रोफाइल में ये दिखाया गया कि 1605 मेगावोल्ट दिखाया गया। तो इसका इफेक्ट जो आपका तालिया कॉन्स्टिट्यूंसी में सिर्फ नहीं पड़ रहा है, इसका इफेक्ट जो डायरेक्टली पड़ता है कि सीएम पार करके नाचो का आयंग मोरिंग तक इसका बैक फ्लो वाटर जो पहुंच रहा है। तो कोई लोग तो घर में मैंने बैठ के सोच रहा होगा कि इतना तो असर नहीं होता, आने देने से भी ठीक है। तो उस लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि ये महंगा से लेके आयंग मोरिंग तक आपका नाचो का जस्ट ये 8 किलोमीटर नीचे में है नाचो टाउन का, वहाँ तक इसका बैक फ्लो पानी जो पहुँच रहा है। और किलोमीटर से हिसाब करने से लेफ्ट हैंड साइड से 49 किलोमीटर, राइट हैंड साइड से 49 किलोमीटर है इसका पानी कवरेज जो कुल मिला के 98 किलोमीटर। अभी डिटेल्स जो हमको दिया गया है उस हिसाब से बता रहा हूँ। ये अभी जो आपको पता है कि ये टागिन कम्युनिटी का सवाल है, ये डिस्ट्रिक्ट का सवाल है, ये सिर्फ डैम का नहीं है। देखिए डेवलपमेंट को हम लोग भी वेलकम करते हैं, लेकिन जिस डेवलपमेंट से मेरा टागिन समाज का जनजाति को तकलीफ़ हो रहा है, सफ़र हो रहा है, उसका ज़मीन, उसका वजूद, उसका स्त्री गायब हो रहा है, उसके लिए मैं कभी रेडी नहीं हूँ। इसके लिए मैं फाइट करने के लिए अपना जान तक देने के लिए रेडी हूँ। तो इसमें ऐसे है कि उसका किलोमीटर को तो बता दिया, लेकिन टागिन का एरिया में जितना भी व्यूवर्स को बता दो कि टागिन जो है जोग्राफिकल एरिया बोलने से लिमिटेड है, लिमिटेड। और जो एरिया होता है पर्तल एरिया होता है वो बेली में होता है। जो बेली में हम लोग कहा पी के जिंदा हुआ, मेरा पूर्वजों ने जो वहाँ से कहा के जिंदा हुआ, हमारा स्त्री वहाँ से जुड़ा हुआ है। हम कहाँ से निकलता है, टागिन कहाँ से निकलता है, वो पूरा स्त्री जो है कि वो बेली से जुड़ा है। अगर वो बेली ही नहीं रहेगा तो टागिन ही कहाँ रहेगा। ये उस चीज़ को, उस दुख दर्द को लेके जितना भी जो अफेक्टेड है लोग हैं, जो अंडरटेकिंग दिया, मेमोरेंडम सबमिट किया, उस बेसिस में हम लोग आज जो वहाँ में गया था। तो उस अभी उस प्रकार से देखा जाने से या में अफेक्टेड के हिसाब से देखने से, देखो आदमी कहता है कि मैक्सिमम 90% जो वेलकम कर रहा है, लेकिन क्यों ऑल टागिन स्टूडेंट अगेंस्ट कर रहा है, क्यों डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन अगेंस्ट कर रहा है, क्यों सिनालेता से अगेंस्ट कर रहा है, क्यों आतपालाजा से अगेंस्ट कर रहा है। देखिए आप लोग इसको रैंडमली काउंट मत कीजिए, जो भी हो प्रैक्टिकल होना है। या में आपका टोटल विलेजेस अफेक्ट जो है कि आपका 27 है, और आपका टोटल सब मार्च जो है कि 35 विलेजेस है। जहाँ में अफेक्ट का है वही पॉपुलेशन को आप रेशियो को काउंट करके देखिए, मैक्सिमम वेलकम कर रहा है ना नहीं कर रहा है। तो टोटल आपका अफेक्ट जो वहाँ में हुआ है 5100 समथिंग का ऐसे लोगों को अफेक्ट हुआ है, घर बार ज़मीन अफेक्ट है।
तो उसमें से हमको अंडरटेकिंग करके ऑल टाइगन स्टूडेंट यूनियन, डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट, एरिया बेस्ड स्टूडेंट यूनियन को दिया गया है। अब एबो 4000 आदमी जो है कि बगबी से लेके और लेगा को छोड़ दो, बगबी, देबुम, देरा, मारा, रमसिंह, इवन दो अभी जो है सीएम नाचो का सिर्फ अंडरटेकिंग नहीं आया है, वो भी आने से ये अंडरटेकिंग का हिसाब से देखा जाने से अभी जो है कि टोटली उल्टा 95% जो है कि नहीं मान रहे। आप पूरा अपर सुबनसिरी को कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि वो अफेक्टेड नहीं है, आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। जहाँ में अफेक्टेड है वो लोगों का आप लिए सोचना है, वो लोगों को कैलकुलेशन करना है, वो लोगों का रेशियो में सोचना है। और जितना भी वहाँ में कंस्ट्रक्शन कर रहा है, आप लोग का सेंटीमेंट को समझ देता हो कि आप लोग किस लिए वेलकम कर रहे हैं। हाँ, 1-2 रुपया मिलने का जो सपना देखा था शायद वो हम लोग का वजह से रोक रहा है। इसके लिए मैं एक्सट्रीमली सॉरी क्षमा चाहता हूँ कि आपको 1-2 रुपया मिलने देने का चक्कर में मेरा पूरा तागिन समाज जो है कि ये देह में डूबने जा रहा है। इसके कारण से मैं आपकी खिलाफ नहीं हुआ। मेरा ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन, तागिन स्टूडेंट यूनियन, एरिया बेस्ड स्टूडेंट यूनियन आप लोग को ये पैसा मिलने नहीं देगा बोल के ऐसे कुछ नहीं है। हम लोग सिर्फ तागिन का सेफ गार्ड के लिए, तागिन को प्रोटेक्शन कर, तागिन का स्त्री को बचाव के लिए है, बाकी सब कुछ नहीं है। तो जितना भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन किया है हमको रिलायबल सोर्स से मिला है कि मैक्सिमम जो बाहर से ये पैसा डाल के करने वाला है उसको पता है, उसका डिटेल नहीं जाने से भी उससे हमको कुछ लेन देन नहीं है, उसको उतना तक रखता है। और इसका इफेक्ट जो है कि डाउन स्ट्रीम में कितना पड़ता है नहीं पड़ता है वो तो हम लोग पता ही। हम लोग का जब ये हिल एरिया है और नॉर्थ ईस्ट जो है कि अर्थक्वेक का मामला में ये सेस्मिक जोन में है, क्योंकि उस नॉर्थ ईस्ट का अंदर में सबसे ताप वाला जगह अरुणाचल है। तो अरुणाचल में से और सबसे ताप वाला जगह अपर सुबनसिरी है। तो अगर ये डैम जो बनता है बोलने से पानी जो है कि वहाँ में सुबनसिरी को कंट्रोल करके रखेगा, 49 किलोमीटर बैक होके वो पानी जो वहाँ में मतलब स्टेगनेंट होके बहना स्टार्ट करेगा तो उसको मिट्टी जो ऑब्जर्व करे। हम लोग का तो पहाड़ी एरिया है, वो जिस दिन पहाड़ गिरना स्टार्ट करेगा तब उसका कंसिक्वेंस को आप लोग पता हो जाएगा। ये फ्यूचर में बहुत डेंजर होने जा रहा है, ये तागिन का फ्यूचर का सवाल है। इसलिए उसको जितना भी सोशल मीडिया में वेलकम कर रहा है, हम लोग को लिख रहा है, आप लोग की प्रोटेस्ट कर रहा है, उसका बारे में सोचिए, फ्यूचर के बारे में सोचिए। और कितना लोग डाउन स्ट्रीम वाला लोग उस ये में हादसा में कितना लोग चला जाए, लाखों लोग इसका जान। ऐसे एक दिन आएगा कि अब रियलाइज़ होगा कि हाँ नहीं बनने देना था, ये सिचुएशन भी डेवलप हो सकता है। और ये देखो सीएम नाचो का जो इनहेबिटेंट है, वहाँ का जो अफेक्टेड है, वो अंडरटेकिंग इसलिए सबमिट नहीं कर पाया, रिप्रेजेंटेशन इसलिए सबमिट नहीं कर पाया क्योंकि उसको ये डैम का बारे में पता ही नहीं है। पता ही नहीं इन द सेंस उसको बताया नहीं है कि आपका एरिया तक जो सब मार्च हो रहा है बोल के बताया नहीं, एपेक हो रहा है बोल के बताया नहीं। इस कारण से वो लोग अननाउन है, पता ही नहीं कि क्या चल रहा है नहीं चल रहा पता नहीं, इसके कारण से वो चुप है। आज का डेट में कोई जो जानकारी है, मेरा ब्रदर या मैं कौशर बकी बैठा हुआ है, मेरा केदी दोयलंगी नाचो बैठा हुआ है, जो पता है कि इसका डैम का इफेक्ट वहाँ तक होने जा रहा है, ये भी वॉलंटियरली। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. अपना यहाँ में आके बैठे कि अपना कम्युनिटी को सेव करना है बोलते हैं। और दूसरा बात देखो, पावर और ये इसका बारे में तो मैं पहले बता चुका हूँ कि अरुणाचल में कितना रिक्वायर पावर है और कितना जनरेट हो रहा है, उसको डिटेल अभी नहीं जाएगा, वो नेक्स्ट मीडिया ब्रीफिंग में आप लोगों को मिल जाएगा। और अभी सीधा सा स्टेट गवर्नमेंट से अपील है और होरदार भी समझो, उसको वार्निंग है कि अब जल्द से जल्द यहाँ में मेरा तागिन जनजाति का 4,000-5,000 पीपल का यहाँ में एपेक हो रहा है, सब मार्च हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो इसका नाराज़गी ये है कि अपना ज़मीन देना नहीं चाहता है, अपना ज़मीन हम लोग अपना ज़मीन देना नहीं चाहते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट क्यों ज़बरदस्ती कर रहा है। और ये पेमा खांडू सरकार को मालूम है कि आप यंग एंड डायनामिक लीडर है, आप पब्लिक के लिए काम करता है, तो पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप महंगा वाला अपर सुबनसिरी वाला डैम को फोर्सफुली मत कीजिए। आप इसको इजीली नहीं लेना है, ये दूसरा जगह जैसे नहीं है, ये तागिन जगह है,
अब तागिन आदमी कैसे होता है आपको पता है, या में एक आदमी भी अगर नहीं मानता है तो उसका कॉन्सिक्वेंस रिजल्ट जो है आप अच्छा से पता है। तो इसमें सीधा सा मैसेज है कि आप ज़बरदस्ती मत कीजिए, जल्द से जल्द ये प्रोजेक्ट को विड्रॉ कर दीजिए, पब्लिक का शांति के लिए विड्रॉ कर दीजिए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो हमारा तागिन का ह्यूमन सेटलमेंट को ज़रूरत से ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, इसलिए तागिन ये चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर रहे हैं। और मैं एनएचपीसी वालों से भी ये अपील करता हूँ कि आप प्लीज़ ऐसे नौबत खराब मत कीजिए कि आपका ऊपर हम लोग आना पड़े। आपको अभी भी बोल रहा है, पहले भी बोला हो, अभी भी टाइम है, आप सुधर जाओ, अभी भी टाइम है, आप अपना बेडिंग बन के यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो कल को ऐसे होगा कि आप ये अफसोस होगा कि हम क्यों पहले नहीं निकले, ये अफसोस होगा। आप अरुणाचल में आया है तो तागिन जनजाति का बारे में आप पता होता हो, तागिन किस प्रकार का है। आप इसको दूसरा एरिया जैसे दूसरा डिस्ट्रिक्ट जैसे थ्रेट मत कीजिए। तागिन जो है कि अलग लेवल का है, उसको हम बताना ज़रूरी नहीं है, पूरा दुनिया आपका पूरा अरुणाचल पता है। तो मैं जितना भी, और इसके साथ साथ मैं एक अपील करना चाहूँगा, जितना भी अफेक्टेड है, जितना भी तागिन जनजाति में जो लोग तागिन के लिए सोचता है, तागिन का ईद के लिए सोचता है, प्लीज़ आप लोग भी आइए, ज्वाइन कीजिए, अपना समाज को बचाइए। स्पेशली मेरा ये तागिन का रिप्रेजेंटेटिव, टीसीएस का रिप्रेजेंटेटिव जो हमारा चारों विधायक है, उससे भी गुजारिश करता है कि आप लोग भी प्लीज़ और दोबारा सोचिए, ये सिर्फ एक दो आदमी का बात नहीं है, ये सिर्फ 300-400 आदमी का बात नहीं है। आप लोग चाहो तो आप लोग के पास मैं अंदर तहकीक में पहुंचा दे सकता हूँ। ये पूरा 4-5,000 आदमी का बात है। प्लीज़ आप लोग भी सोचिए, बाद में ऐसा ना हो कि पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग का ऊपर गिर जाए कि ये तागिन में ये हो रहा है, वो हाल हो रहा है। ऐसे ना हो कि आची मोरी जैसा इंसिडेंट रिपीट ना हो जाए। इसलिए अभी से मैं आप लोग को क्लियर कर दे रहा हूँ कि प्लीज़ आप लोग भी और दोबारा सोचिए, ज़बरदस्ती मत कीजिए, सीधा जाके आपका पेमा गंडू सरकार को परस्यू कर दीजिए कि मेरा आदमी जो ज़मीन को देने के लिए रेडी नहीं है, आप ज़बरदस्ती मत कीजिए बोल दीजिए। I, on behalf of all Upper Simsiri District Student Union, and on behalf of my President and General Secretary and entire team of all Upper Simsiri District, I myself, Lee Dui, I am the Deputy Speaker of ASDUSU. तो यहाँ ऐसा है कि गवर्नमेंट द्वारा एंड देन यहाँ के लोग जो बोलता है कि डेवलपमेंट आ रहा है, तो मैं एक सवाल करना चाहूँगा आपका, छोटा सा एक बेसिक डेवलपमेंट को, आपके जो बेसिक नेसेसिटी को आपका गवर्नमेंट एंड यहाँ का जितना भी ये जो है रिप्रेजेंटेटिव है, आप लोग जो है पूरा नहीं कर सकता है। हर गली में, हर बस्ती में, हर ये में ये चलो दापुरजो के अंदर भी बोलो, आप मेडिकल डिपार्टमेंट देखिए, मेडिकल जो है स्पेशली वहाँ हेल्थ सेक्टर में देखिए, पूरा आप जो एक छोटा सा एक बेसिक चीज़ को भी आप लोग जो डेवलपमेंट के तौर पे एक बेसिक जो निधि है डे टू डे लाइफ में, हॉस्पिटल को, एजुकेशन को, रोड कम्युनिकेशन को आप लोग ठीक नहीं कर सकता है। तो जो चीज़ अभी नहीं आया, हम लोग के सामने नज़र में नहीं आया, और डैम जैसे मेगा डैम जैसे प्रोजेक्ट्स को क्या हम लोग जो उसमें क्या उम्मीद रखेगा, आप लोग जनता लोग को भी वही मैं अपील करता हूँ कि ऐसे जो जूता ख्वाब और ऐसे जो डिजास्टरस जो डेवलपमेंट है, जो ये प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं हमारे जो दापुरी जो के जितना ये डाउन स्ट्रीम एरिया है या तालिया सर्कल और इसका उनमें सिनालिता बेल्ट का कुछ चीज़ को जो रिजर्वर एरिया में जो गिरता है, कहीं ना कहीं कल को जो रिजर्वर एरिया में ऐसे कि लैंडस्लाइड होने का बहुत चांसेस ज़्यादा होता है, एंड देन डाउन स्ट्रीम में जो फ्लड का जो चांसेस ज़्यादा होता है। तो ऐसे चीज़ को भी आप लोग दिमाग में रखिएगा काइंडली। तो यहाँ पे और एक मैं एनएचपीसी और जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वहाँ से भी उन लोग से भी एक तो सवाल करना चाहूँगा। आप लोगों ने शुरू में हमारे ऑल अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट द्वारा एंड देन वेरियस ऑर्गेनाइजेशन जो आप लोग को एक कंसर्न एक नोटिस भी दिया गया था, एंड देन आपका वहाँ में एक रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया था कि एनएचपीसी का जब से स्टार्ट आया तब से लेके कुछ भी अगर मोमेंट शुरू होता है, कुछ भी मीटिंग कॉल्स होता है या कुछ भी होता है, तो हम लोग कंसर्न में, डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन कंसर्न में, आत्सू कंसर्न में, एंड देन जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका कंसर्न में आपको हमेशा हम लोग जो ये नोटिस जो हमारे ऑफिस तक पहुंचाने के लिए बोला था, आप लोगों ने बिना बताए, जो कि आपने डिलीवरेटली जो हमारे जो आपका जो मीटिंग है, हम जितना भी हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है प्लस जो अफेक्टेड एरिया का कंसर्न जो इनोसेंट विलेजर्स है,
आप लोगों ने उसके बिना कंसर्न में मीटिंग बैठा के आप लोगों ने गलत वहाँ में एक रिज़ल्ट लाया, एक गलत जो मीटिंग जो रिजोल्यूशन लाया पब्लिक के सामने में रखा, पॉलिटिशियन और इसका जितना हाई अथॉरिटी उनके सामने में रखकर कि ये जो है चीज़ जो यहाँ में इफेक्टेड नहीं है, यहाँ में सब पब्लिक ये एक्सेप्ट है बोल के इसे रॉन्ग मैसेज जो सोशली अब जो सोशल मीडिया के थ्रू भी पहुँचा रहे हो वो बिल्कुल गलत है। तो आपका ये जो है एक तो राइट टू इन्फॉर्मेशन जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1A में आप जो है एंड द प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस का जो खिलाफ बिल्कुल है। तो ऐसे चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग को जो है ये चलो गवर्नमेंट भी बोलो या सरकार भी बोलो या NHPC पार्टिकुलरली NHPC जो वर्किंग ये एजेंसी है, हमारे जनता को, डिस्ट्रिक्ट का जनता को, हमारे तगिन समाज को, हमारे एरिया को जो है कितना बेवकूफ़ बना रहा है, आप लोग इसको जानना चाहिए। एंड देन डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन के बारे में बोलने से आप लोग मालूम है कि डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन इज़ ऑलवेज स्टैंड्स फॉर आवर डिस्ट्रिक्ट एंड पीपल। हम लोग यहाँ का भलाई के लिए, हमेशा यहाँ का डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट एक्टिविटी में कभी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन ने हम लोग कभी इसको अगेंस्ट नहीं किया, हम लोग हमेशा वेलकम किया है। लेकिन कुछ डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होता है कि जो फ्यूचर जो ये में कॉन्सिक्वेंसेस जो बहुत भयंकर और बहुत डिजास्टरस होने वाला है, ऐसी चीज़ को हम लोग कभी एक्सेप्ट नहीं करता है। तो देखा गया तो ये डैम इशू भी वही है कि एक मल्टीपल डैम जो हमारे अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में जो गवर्नमेंट द्वारा, सरकार द्वारा लाया गया, तो इसका टोटली खिलाफ है। उसके बाद में मैं यहाँ पे जो अपना जो देशू का ऑल अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट का यूनियन का जो हमारे प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी एंड इंटायर एग्जीक्यूटिव का बात को रखना चाहूँगा कि देशू जो है आज के बाद, आज के इसी प्रेस ब्रीफिंग के साथ अच्छू के साथ ज्वाइन होके एंड देन जितना भी यहाँ इफेक्टेड फॉरम है, जिस जो इनोसेंट विलेजर्स है जो तकलीफ झेल रहे हैं, उनके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। मैं श्री क्योसर बकी प्रेसिडेंट सिनाल्ता सू। तो यहाँ मैं सीधा बोलने आया हूँ कि जो अभी जो मेंगा डैम जो चल रहा है 101% जो ओपोस है और मैं टीम अच्छू के साथ हूँ। और बाकी मैं बेसू को भी कहना चाहूँगा, आइए हमारे अच्छू के साथ दीजिए, क्योंकि ये सिर्फ हमारा ये तलिया कॉन्स्टिट्यूंसी का सिर्फ बोलकर नहीं है, ये हमारा एंटायर तगिन कम्युनिटी का इशू है। क्योंकि हम कहाँ बैठेंगे, कहाँ जाएंगे, ऐसा प्रॉब्लम हमारा जगह जो आज डूबने को है। तो सब आइए, और ये सिर्फ आपका तलिया कॉन्स्टिट्यूंसी डूब रहा है बोलकर नहीं है, हमारा जो आयल मोरिंग तक जो ये नदी जो जा रहा है, कल को लैंड गिरेगा ऊपर से। हमारा सिनाल्ता एरिया में तो ऐसे कि सीम सर्कल में तो आप जानता है कि पूरा हिल एरिया है, वह नदी आएगा पूरा धीरे धीरे मिट्टी को पूरा ख़त्म कर दिया था। तो कहाँ जाएगा। इसलिए मैं अच्छू का ये 100% सपोर्ट हूँ और ये डैम को 100% अगेंस्ट हूँ। कल को आप लोग ज़बरदस्त भी मत कीजिए, डैम लाएगा वो करेगा बोलकर। आप जो हम सब नहीं मान रहा है तो आप लोग क्यों ज़बरदस्त कर रहे हैं। हम या एरिया का लोग जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो हम यहाँ हमारा तगिन ट्राइब जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो माई सेल्फ बुसर माइन, जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल तलेफाइन लवली जारिंग एरिया स्टूडेंट यूनियन। हम जिस जगह से बिलोंग करता है, जिसमें अभी ऑन गोइंग कंस्ट्रक्शन, ऑन गोइंग जो इशू है, जिसमें हम उस एरिया से आता है, जो वहाँ का एरिया स्टूडेंट यूनियन है, वहाँ का मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ। हम मुद्दा पे बात करेगा तो मुद्दा ऐसा है कि सरकार को तो हम लोग अभी जो कन्फ्यूज में है, अगर आपको सचमुच में जो पब्लिक का बेनिफिशियल के लिए, पब्लिक का जो इंटरेस्ट के लिए अगर डेवलपमेंट देना था, तो आप पब्लिक का वेलकम वाला डेवलपमेंट दीजिए ना। पब्लिक को रोला के, पब्लिक को दुख पहुंचा के आपका ऐसे वाला डेवलपमेंट को क्या करे। हमारा पब्लिक आज का है, कल रहने जगह नहीं है। आपका प्रोजेक्ट को पब्लिक को ज़बरदस्ती करके, डोमिनेट करके, गुमराह करके जो प्रोजेक्ट देगा, स्कीम देगा, पब्लिक इसको अगर डाइजेस्ट नहीं है, अब क्यों ज़बरदस्ती कर रहा है। इसलिए हम लोग अफेक्टेड एरिया का बीइंग ए स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन होने के जो नाते आज हम लोग सीधा ये हम लोग सवाल है, हम लोग बिल्कुल ये चीज़ को मानने वाला नहीं है, चाहे कुछ भी हो। क्योंकि हमारा जो बस्ती में, जो तलिया का अंदर में, मंगा का अंदर में जितना भी जो पब्लिक रह रहा है, इतना अभी जो तकलीफ़ पेश कर रहा है, उन लोग को बेचारा सरकार के पास पहुंचने के लिए भी मतलब आइडिया नहीं है, नॉलेज नहीं है। हमारा लोग सिस्टम को डॉक्यूमेंट के थ्रू जानने के लिए भी नॉलेज नहीं है आज। इसलिए हम लोग का लोग जो जान चुका है आपका सिस्टम को, आपका NHPC का गाइडलाइंस को, NHPC का जो प्रोजेक्ट आने से हमारा वहाँ कितना पैदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, ये चीज़ को हम लोग को पता है। इसलिए हमारा डायनामिक चीफ मिनिस्टर का जो सरकार है, आपका सरकार जो अच्छा सरकार है, ऐसे नहीं कि अभी हमारा तलिया में जो लड़ाई झगड़ा
जो एक दूसरे में कभी भी हम लोग उच्च आवाज़ से अभी तक किसी का अगेंस्ट भी उठा के नहीं देखा है। ऐसे सिचुएशन क्रिएट मत कीजिए। हम लोग ये कंस्ट्रक्शन जो अभी ये ऑन गोइंग इशू को, जो डैम इशू को बिल्कुल अगेंस्ट है, हम लोग बनने नहीं देगा, क्योंकि वहाँ पे हमारा जो डैम बनने से हमारा बहुत सा मतलब एपिक हो रहा है। हमारा जो इतना सारा विलेजेस जो खत्म हो रहा है, नदी में डूबने जा रहा है। अगर हमारा जो लैंड को एक बार गवर्नमेंट को दे दिया, एनएचपीसी को दे दिया, एनएचपीसी का तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, जो बहुत बड़ा नाम है ओवरऑल इंडिया में, वर्ल्ड में जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट करता है, वो लोग रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन के साथ में एक बार लेने के बाद प्रोजेक्ट जो हमारा जो लैंड को दोबारा नहीं देता है। इसलिए कि एनएचपीसी का जितना वर्किंग एजेंसी है, आप जबरदस्ती मत कीजिए। अब जहाज काम करता है, हम लोग वहाँ में आके आपको छोड़ने वाला भी नहीं है। हम लोग आपको काम नहीं करने देगा, बिल्कुल ज़बरदस्ती करके पब्लिक को गुमराह करके एग्रीकल्चर क्लियरेंस करो, फॉरेस्ट क्लियरेंस करो, जल्दी काम होना है, पैसा वापस जाएगा। पब्लिक को गुमराह मत करो। ऐसा प्रोजेक्ट बिल्कुल हम लोग सेटिस्फेक्शन नहीं है, बिल्कुल हम लोग एक्सेप्टेंस नहीं करेगा। और दूसरा बात, हमारा जो अभी पब्लिक है, मंगा का जितना भी रादन का जो पब्लिक है, आप सबसे भी हम लोग का स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिटी की तरफ से हम लोग रिक्वेस्ट करना चाहता है कि कुछ लोग वहाँ पे कंस्ट्रक्शन बना रहा है, बाउंड्री वॉल बना रहा है, वहाँ पे बिल्डिंग बना रहा है। वो भी अभी सुना है कि आपका करोड़ों जो लाखों दार करके लोन करके जो घर बना रहा है। इस तरह का आप काम मत कीजिए ना। हम लोग जो भी आवाज़ कर रहा है, जो भी काम कर रहा है, आप सब के लिए कर रहा है, ऐसा काम मत कीजिए। और ये प्रोजेक्ट को तो हम लोग बिल्कुल मतलब अगेंस्ट है। ये हम लोग ये मंगा डैम का इशू में हम लोग अभी से लेके हम लोग आने वाले दिन को भी अगेंस्ट होते रहेगा। थैंक यू वेरी मच। Messi scores. EP Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now.